start from Hess's law. Hess's law. जी बेटा कोई बताएगा इसकी what is the statement of Hess's law? Statement can be asked in A2. Statement for the Hess's law. You know what is Hess's law? Yes, sir. Yes बेटा बताएं इसकी statement. Total enthalpy change is independent of the path followed. हाँ, But provided final initial states are the same. Shabash, good. It means that suppose you have A is reactant, and let us say A goes to B and B is the product. ठीक है? अब ये one step reaction है. This is one step reaction in which this A goes to B. ठीक है? और ये एक step में this happens. तो ज़ाहिर है इस एक step की अपनी enthalpy change होगी. Let's say this enthalpy change is delta H. Now alternatively A goes to C, ये alternate path है, and then C goes to B, and then D goes to B. अच्छा ये मुझे बता बेटा कि जो alternate path है उसमें कितने steps हैं? ये alternate path है जिसको मैंने red color से show किया. This is alternate path. और उसमें कितने steps हैं बेटा? 3 steps हैं. हर step की अपनी energy होगी. Let's say ये जो step है this is delta H1, ये दूसरा जो step है this is delta H2, और जो third step है वो delta H3 है. तो अब एक step में react, अच्छा अब ये A is initial state, A is initial state और B is final state. दोनों path के लिए अगर one step में reaction हो रहा है तो A initial state है और B final state है, और alternate path के लिए भी A initial state है और B final state है. ठीक है? तो अब अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ के इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो फिर एनर्जी चेंज वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड पे. इसका मतलब ये है कि जो ये डेल्टा H है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. ठीक है बेटा, इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो और वही वाला रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो तो टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगी. कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो और वही वाला रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो तो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम. सो द टोटल एंथैल्पी चेंज is independent of path followed, provided initial and final states are same, provided initial and final states are same. अच्छा, so any confusion बेटा? ठीक है, confusion नहीं है तो next बेटा concept is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. But yesterday I discussed that this Born-Haber cycle will be constructed for ionic compounds. Will be constructed for ionic compounds. Ionic compounds. Okay. So suppose I'm taking an ionic compound, NaCl. Right? NaCl is ionic compound. And you know all ionic compounds are solids at room temperature. ठीक है? अच्छा, अब NaCl के लिए how to construct Born-Haber cycle. तो बेटा, first tell me how many elements are there in this compound? How many elements? 2. 2 elements. One of the element is sodium, the other element is chlorine. So you should begin with the standard state of these elements. What is the standard state of sodium? Solid. And what is the standard state of chlorine? Diatomic gas. Diatomic and gas. ठीक है? अच्छा, अब आप बेटा देखो फॉर्मूला में कितने क्लोरीन हैं? फॉर्मूला में, this is the formula.
इसमें कितने क्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं? 1 क्लोरीन है ना बेटा फॉर्मूला में। अगर ये MgCl2 होता तो फिर अब फॉर्मूला में कितने क्लोरीन है बेटा? MgCl2 में 2 क्लोरीन है, ठीक है फॉर्मूला में। अगर AlCl3 होता तो फिर फॉर्मूला में कितने क्लोरीन होते? 3 क्लोरीन होते, राइट। तो NaCl में के फॉर्मूला में हाउ मेनी क्लोरीन होते हैं? 1 क्लोरीन। तो फिर चूंकि 1 क्लोरीन है बेटा, तो आई विल टेक 1/2 ओवर हियर। ये समझ में आई बात? 1/2 Cl2. Why I have taken this 1/2? Because we have 1 chlorine in the formula, right? अच्छा, अब now बेटा, if this sodium is heated, if sodium is heated, we will get sodium from solid to gaseous state. क्या बताओगे which energy change is represented by this arrow? Sodium solid goes to sodium gaseous state. What is this energy change? जी बेटा शाबाश, ये एटोमाइजेशन है। किसकी? सोडियम की। This energy change is atomization for sodium, right? अच्छा, now if this sodium is further heated, Sir? जी, Sublimation भी नहीं होगा? सब्लिमेशन भी यस जनरली हम कह सकते हैं, लेकिन कल हमने ये डिस्कशन की थी कि 1 मोल गैसियस एटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अगर 1 मोल गैसियस एटम बने अपने एलिमेंट से, तो आप देखो इधर 1 मोल गैसियस एटम फॉर्म हो रहा है, 1 मोल गैसियस एटम फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से स्टैंडर्ड स्टेट में, तो दिस इज एटोमाइजेशन। Okay, sir. जनरली यस यू कैन से सब्लिमेशन, लेकिन मेटल्स की जो सब्लिमेशन होती है वो असल में एटोमाइजेशन ही होती है, राइट? Okay, sir. अच्छा, इसके बाद आप ये सोडियम गैसेस को फर्दर हीट करें तो बेटा ये ऐसे बनेगा कि नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सोडियम गैसेस को जब आप हीट करेंगे तो Na1+ गैसेस बनेगा। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? ये विच एनर्जी चेंज इज दिस? जी मोइस बेटा, ये कौन सी एनर्जी चेंज? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में भी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है, राइट? ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि इस क्लोरीन को हीट करें। जब आप क्लोरीन को हीट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा Cl गैसेस। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? जी नवाल बेटा, एटमाइजेशन होगी। ये एटोमाइजेशन है। जैसे आपको कैसे पता चला कि ये एटोमाइजेशन है? देखो साथ में वो 1/2 से कट हो गया। हाँ, 1 मोल गैसियस एटम बन रहा है अपने एलिमेंट से, ये एटोमाइजेशन है। लेकिन कल हमने एक रूल पढ़ा था कि डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एटोमाइजेशन किसके इक्वल होगी? बॉन्ड एनर्जी के बॉन्ड एनर्जी के हाफ bond की। बॉन्ड एनर्जी के हाफ की। डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एटोमाइजेशन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज डिस्कशन, राइट? डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एटोमाइजेशन इज हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ओके, अब बताओ सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, व्हाट विल हैपन विद दिस क्लोरीन? जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया ना, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय दिस क्लोरीन, so this chlorine will become Cl negative, right? Now which energy change is represented by this arrow? जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो क्लोरीन गेन करेगा, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। So which energy change is this one? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बताएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो होगी या एक्सो होगी? सर एक्सो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो। एंडो होगी। शाबाश, ठीक है। ओके, अब मुझे बताएं कि ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है बेटा, दिस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, they will combine together to produce NaCl solid, ठीक है? Sodium ion and chloride ion will combine to produce sodium chloride in solid state. Now which energy change is this one? जी, which energy change is this one?
जी हाँ दिया बेटा। जी मोइस, मोइस बेटा। सर बॉन्ड हैबिट। नहीं, आप हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? Na1 प्लस gaseous plus Cl negative gaseous, and if it produce NaCl, Lattice. हाँ, this energy is lattice energy, शाबाश। लेकिन अगर ये ऐसे होता Na solid and 1/2 Cl2 गैस, उससे NaCl बनता, अब ये कौन सी एनर्जी चेंज है? Formation. ये फॉर्मेशन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब बताओ ना, ये सोडियम आयन गैसेस और क्लोराइड आयन गैसेस से अगर NaCl बनता है तो दिस इज लैटिस एनर्जी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। एनी कंफ्यूजन? जिसको भी कंफ्यूजन है जरूर बताएं, ठीक है। अब मुझे बताएं, हम स्टार्ट कहां से हमने लिया था? हमने स्टार्ट यहां से लिया ना, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट यहां से लिया था। यहां से आपने स्टार्ट लिया और आपने एंड कहां पे किया? यहां एंड किया NaCl सॉलिड पे, राइट? तो यानी ये मल्टीपल स्टेप्स के बाद आप NaCl सॉलिड तक पहुंचे। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यहां पे डिसाइड करें। जहां से स्टार्ट लिया था वो इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और जहां पे एंड किया वो फाइनल स्टेट है। और इतने ज्यादा स्टेप्स थे। कौन कौन से स्टेप्स थे बेटा? एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी बाय 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एंथैल्पी, सारी एनर्जीज के बाद आप NaCl तक पहुंचे, ठीक है। अब अल्टरनेट पाथ इसमें ये है, अल्टरनेट पाथ बेटा गौर से ये सुने कि ये अगर ये रेड एरो को देखें तो रेड एरो पे कौन सी एनर्जी चेंज हम लिख सकते हैं? विच एनर्जी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड एरो? Formation. दिस इज फॉर्मेशन। अब जो ये फॉर्मेशन है ना, ये वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब Na सॉलिड और क्लोरीन गैस से डायरेक्टली NaCl बन जाए तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये है वन स्टेप। और अल्टरनेटिवली इतना सब कुछ होके, ये अल्टरनेटिव पाथ है, इतना सब कुछ होके NaCl बने, तो ये अल्टरनेट पाथ है। तो अब अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, हैसेस लॉ भी हमने पढ़ा ना कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या कई स्टेप्स में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ वन स्टेप जो प्रोसेस था वो ये फॉर्मेशन वाला, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ये इक्वल होगा अल्टरनेटिव पाथ पे जो एनर्जी चेंजेस है। अल्टरनेटिव पाथ में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस है? एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है, प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, प्लस बॉन्ड एनर्जी बाय 2 है, प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, प्लस लैटिस एंथैल्पी है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में सिर्फ एक वैल्यू अननोन होगी, बाकी सब नोन होंगी। तो बस आप प्लेस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? दिस इज बॉन्ड हाइपर साइकिल। एनी कंफ्यूजन बेटा? इसमें आप मुझे ये बताओ कि कौन सी एनर्जी चेंजेस आप डेटा बुकलेट से देखोगे? इसमें कौन सी वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट से मिलेंगी बेटा? Bond energy. बॉन्ड एनर्जी और Ionization energy. आयोनाइजेशन, ये दो वैल्यूज जो हैं वो डेटा बुकलेट में होंगी, बाकी वैल्यू क्वेश्चन में होंगी, बाकी वैल्यूज क्वेश्चन में होंगी, और फिर एक वैल्यू अननोन होगी। तो बस थ्रू कैलकुलेशन आप अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस कोई take another molecule. Suppose I'm taking magnesium oxide, ठीक है। How to construct bond hamper cycle for this magnesium oxide? So beta, how many elements are there in this compound? 2 elements. तो आपने कहां से स्टार्ट करना? स्टैंडर्ड स्टेट से। You need to take standard state of each element. तो मैग्नीशियम की स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट इज Diatomic gas. डायटोमिक गैस। अब बताओ कि इधर 1/2 लिखना है या नहीं? यस सर, लिखते हैं। हाँ, फॉर्मूला में यू हैव 1 ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर्मूला में यू हैव 1 ऑक्सीजन, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू प्लेस 1/2 ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम मैग्नीशियम को हीट करें तो मैग्नीशियम विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट,
ठीक है, which energy change is this one? Atomization. This is atomization, लेकिन मैग्नीशियम की एटोमाइजेशन, राइट। अच्छा, अब अगर हम इस मैग्नीशियम को फर्दर हीट करें तो यू विल गेट Mg, पहले Mg1+ बनेगा, फिर Mg2+ बनेगा, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। Which energy change is represented by this arrow? Second ionization energy of magnesium. ओके जी बेटा, बाकी बच्चे भी कमेंट करें, which energy change is this one? No, first and second ionization energy. हाँ, दिस इज फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फिर दूसरा, तो फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। बेटा आप इसको दो इस तरह भी कर सकते थे कि पहले आप 1+ बनाते, फिर आप 2+ बनाए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2+ ले लो, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नीशियम सॉलिड से स्टार्ट हुए थे हम, एंड वी एंडेड एट मैग्नीशियम, नॉट एंडेड, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव तक हम पहुंचे। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को अगर हम हीट करें तो यू विल गेट O इन गैसियस स्टेट। व्हिच एनर्जी चेंज इज दिस वन? Atomization. एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यस, लेकिन डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल में एटोमाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ अ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल में एटोमाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ अ बॉन्ड एनर्जी। अब बेटा ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड इन ऑक्सीजन? मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन will be added in oxygen, right? So which energy change is represented by this arrow? First plus second electron affinity. शाबाश, +1 + second, first plus second electron affinity, ठीक है। अब now you have magnesium ion and oxide ion, so these ions will combine. These ions will combine to produce MgO, magnesium oxide in solid state. And which energy change is this one? Lattice. This is lattice energy, ठीक है। तो अब आप देखें इनिशियल स्टेट कौन सी थी, जहां से आपने स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट कौन सी है? दिस वन, जहां पे आपने एंड किया, दिस इज फाइनल स्टेट। अगर हम इस इनिशियल और फाइनल, इनिशियल स्टेट से डायरेक्टली आए फाइनल स्टेट तक, तो व्हिच एनर्जी चेंज इज दिस वन? इस ब्लैक एरो पे कौन सी एनर्जी चेंज होगी? Formation. फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एलिमेंट्स अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है और उससे कंपाउंड बने, तो दैट एनर्जी चेंज इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब आप देखिए एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, ये एक स्टेप प्रोसेस है, और अल्टरनेटिव पाथ पे देखें, इसी इनिशियल स्टेट से अगर हम यूं आए फाइनल स्टेट तक, तो बहुत सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली आए तो ये वन स्टेप प्रोसेस होगा, जो कि वन स्टेप पे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, राइट, और ये अल्टरनेटिव पाथ है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ कैसी इक्वेशन बनेगी बेटा? Standard enthalpy change of formation equal. फॉर्मेशन जो एक स्टेप में एनर्जी चेंज है, वो इक्वल होगी बाकी स्टेप्स में जितनी भी एनर्जी चेंजेस हैं उनके सम की, सम ऑफ ऑल। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। आई होप कि आपको पता है सम ऑफ ऑल का क्या मतलब है। सम ऑफ ऑल में बेटा आप क्या लिखोगे? एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम लिखोगे, प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखोगे, प्लस बॉन्ड एनर्जी बाय 2 लिखोगे, प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखोगे, और प्लस लैटिस एंथैल्पी लिखोगे। इसमें आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डेटा बुकलेट में होगी, बाकी वैल्यूज क्वेश्चन में होंगी और एक अननोन होगी। एनी कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, ओके। अब मुझे ये बताएं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एंड दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। या कैल्शियम फ्लोराइड ले लें। तो अब बेटा इनिशियल
हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जी निम्रा बेटा आप बताओ, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? कैल्शियम एंड क्लोरीन। सॉरी बेटा मुझे आवाज नहीं आई। कैल्शियम एंड क्लोरीन। ठीक है शाबाश। कैल्शियम, और बेटा ये स्टैंडर्ड स्टेट से लेना, ठीक है? तो कैल्शियम की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, और क्लोरीन लेना तो फ्लोरीन लेना, सॉरी फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट डायटोमिक है और गैसियस है। अब बेटा ये बताएं कि इधर 1/2 प्लेस करें या ना करें? एनीवन इन द क्लास, शुड वी प्लेस 1/2 sir. ओवर हियर? हाँ 1/2 प्लेस ना करें, क्यों? कितना में वो चाहिए? हाँ बिकॉज फॉर्मूला में यू हैव 2 फ्लोरीन, सो डोंट प्लेस 1/2। अच्छा तो अब व्हेन कैल्शियम सॉलिड को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम गैस बनेगा। दिस एनर्जी चेंज इज एटमाइजेशन फॉर कैल्शियम। उसके बाद कैल्शियम को फर्दर हीट करेंगे तो कैल्शियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 की वजह से ये डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा, डाई पॉजिटिव। सो इट मींस दिस एनर्जी चेंज इज फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अच्छा अब फ्लोरीन का बेटा क्या करें, मैं इस F2 को हीट करूं तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा? What will be formed if this F2 is heated? 2 gaseous atoms of fluorine. Shabash, 2 mole fluorine in gaseous state, ठीक है? अब which energy change is represented by this arrow? 2 into atomization energy and bond energy. हाँ ये 2 into atomization है, क्योंकि 2 मोल गैसेस एटम बन रहे हैं, और 2 into atomization असल में इक्वल होती है बॉन्ड एंथैल्पी के, बॉन्ड एनर्जी की। ये देखो एटोमाइजेशन इक्वल होती है बॉन्ड एनर्जी बाय 2 के, तो मैथमेटिकली इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 2 into atomization is equal to bond energy. Does it make sense? ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। Yes sir. तो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी है या 2 into atomization एनर्जी। और बेटा अब कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो you have 2 fluorine atom, each fluorine will gain 1 electron, so you will get 2F1 minus। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा and you have 2 fluorine atoms, each fluorine will gain 1 electron। So now which energy change here? Electron affinity. Sorry? Electron affinity. हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं, First electron affinity. ऐसे लिखते हैं जी। मोइस बेटा आप बताएं इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं? 2 into electron affinity. हाँ शाबाश, इसको टाइम्स 2 भी करना। क्यों बेटा टाइम्स 2 क्यों किया? 2 more. 2 मोल है फ्लोरीन के, फ्लोरीन के 2 मोल है, इसलिए इसको टाइम्स 2 करना। अब अगर आप इसको टाइम्स 2 करना भूल जाए ना तो आपका फिर आंसर इनकरेक्ट आएगा। अच्छा उसके बाद ये बेटा गैसियस आयन से फॉर्म होगा आयोनिक कंपाउंड यानी कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड। तो विच एनर्जी चेंज हियर ऑन दिस एरो? लैटिस एनर्जी। तो अब इनिशियल स्टेट ये थी ना, दिस वाज इनिशियल स्टेट, और फिर कैल्शियम फ्लोराइड ये फाइनल स्टेट है। अगर हम डायरेक्टली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएं तो विच एनर्जी चेंज इज दिस वन? ये रेड एरो पे कौन सी एनर्जी चेंज है? जी बेटा दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि एलिमेंट से 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो नाउ अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो कि एक स्टेप प्रोसेस है विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, ठीक है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस 2 into first electron affinity प्लस लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? अच्छा एनी कंफ्यूजन? No sir. अच्छा अब ये करना है कि बेटा ये एक मैं मॉलिक्यूल दे एक कंपाउंड दे रहा हूं, आप इसकी बॉन्ड हैबिट साइकिल खुद बनाएं, ठीक है? प्रेफर्ड कि मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? ये है सोडियम ऑक्साइड, इसकी बॉन्ड हैबिट साइकिल कंस्ट्रक्ट करें। प्रेफर्ड कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हैबिट
साइकिल। जी बेटा ये भी क्लास वर्क है, आप इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट करके इसको सॉल्व करके पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी इमामा बेटा आप कर रहे हो अटेम्प्ट इसको? इमामा हाँ ठीक है जी। जी बेटा अटेम्प्ट कीजिए, सेंड मी अ पिक्चर देन। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके नवाल का मैंने रिसीव किया है। अच्छा नवाल बेटा ये प्रेफर्ड होगा कि आप इसको अपसाइड डाउन बनाएं, ठीक है? जो जैसे आपने बनाया है ना जी ये आगे चल के मैं एक और चीज बताऊंगा, फिर उससे कनेक्ट करना हमने, तो इसलिए प्रेफर्ड के ये एरोज अपवर्ड जाने चाहिए, ओके सर ठीक है। ठीक है? लैटिस एनर्जी का और फॉर्मेशन का एरो नीचे आना चाहिए, बाकी एरोज अपवर्ड हों। इस तरह से आप इन एलिमेंट्स को अरेंज करें। बाकी ठीक है, आपका यानी आइडिया ठीक है इस बोन साइकिल। वेटिंग फॉर अदर बोन हाइब्रिड साइकिल्स बेटा, फॉर हादिया, इमामा, मोइज, निमरा एंड नफीसा। आई कैन हेल्प यू जहां कोई इशू है, कंफ्यूजन है। रिसीव फ्रॉम निमरा। निम्रा बेटा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें निम्रा बेटा, क्योंकि 2 मोल सोडियम के एटोमाइज हुए हैं, बाकी सब ठीक है। हादिया हाँ हादी बेटा ठीक है, आइडिया तो सही है, लेकिन प्रेफर्ड जैसे मैंने नवाल को सजेस्ट किया ना कि ये एरोज अपवर्ड जाने चाहिए, क्योंकि आगे मैं एक और साइकिल भी बताऊंगा उससे कनेक्ट होगी ये वाली साइकिल, इसलिए प्रेफर्ड के केस के एरोज जो हैं वो अपवर्ड हों, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। मोइज बेटा आपने ड्रॉ किया? मोइज एंड इमामा। सर भेज दो। ओके सर कर इमामा रही हूँ। बेटा सर कर रहे हो या भेज रहे हो? नहीं मैं भी कर रही हूँ, होने वाला है। ओके चलें, यू हैव 1 मिनट। ओके
ठीक है बेटा, इन द मीनवाइल आई थिंक अगर के if I take this compound, मोइज एंड मामा बेटा कितना टाइम है? ओके, अब बेटा मुझे बताएं if I take this compound aluminum chloride, बस जल्दी से मुझे just tell me how should I make bond have a cycle? I'll begin with aluminum, तो इसकी standard state is solid, and जी बेटा for chlorine what should I take here? Diatomic. हाँ, क्लोरीन की लेनी तो स्टैंडर्ड स्टेट है, डायटोमिक एंड गैसेस, लेकिन अब फॉर्मूला में कितने क्लोरीन है? Sir, 3. 3, तो अब यहाँ व्हाट शुड आई टेक? 1 whole 1/2 or 3/2. हाँ, 1 whole 1/2 या 3/2 ले लें, ठीक है। तो अब ये तो देखो एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम गैस, इट इज एटमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, और फिर एल्यूमिनियम गैस से जब इट इज हीटेड तो यू गेट एल्यूमिनियम 3 प्लस गैस, so this is first plus second plus third ionization energy, right? What happens is जब 3/2 Cl2 को हीट करेंगे तो what you will get? 3 chlorine atoms. हाँ, 3 chlorine atoms in the gaseous state. 3 chlorine atoms in the gaseous state बनेंगे। मोइस बेटा ये आपने आयोनाइजेशन एनर्जी को ×2 भी करना है, बाकी सब ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना मोइस, बाकी आपने ठीक लिखा। ओके, तो बेटा ये 3/2 Cl2 को अगर हम हीट करें तो यू विल गेट 3 Cl इन द गैस स्टेट। अब ये एनर्जी चेंज क्या होगी? कौन बताएगा ये एनर्जी चेंज? 3 into atomization. हाँ, 3 into एटमाइजेशन एनर्जी, यस ठीक कह रही हो बेटा। आप इस तरह अपनी तसल्ली कर लो। देखो Cl2 गैस को जब हम हीट करें तो व्हाट यू गेट 2 Cl गैस। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? 2 into atomization. 2 into एटमाइजेशन, जो कि इक्वल होगी किसके? बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें 3/2 से, पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 Cl2 विल बी इक्वल टू 3 Cl हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 3/2 2 एटमाइजेशन, और इधर होगा 3/2 बॉन्ड एनर्जी, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 3 एटमाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं या 3/2 बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेन पेरेंट इक्वेशन से खुद ही उसको एडजस्ट कर लें नंबर्स को, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी एनर्जी चेंज है। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये अब ये है 3 एटमाइजेशन एनर्जी, जो कि असल में 3/2 बॉन्ड एनर्जी। ये मैं दोनों इसलिए लिखता हूँ बेटा कि कभी तो वो एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देते हैं क्वेश्चन में, और कभी वो कहते हैं डेटा बुकलेट यूज करें। डेटा बुकलेट यूज करने का मतलब है आप बॉन्ड एनर्जी फिर डेटा बुकलेट से लेंगे, तो आपको ये दोनों टर्म्स में पता होना चाहिए एनर्जी चेंज, ठीक है। एट टाइम्स ये एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं देते क्वेश्चन में और कहते हैं कि डेटा बुकलेट यूज करें, तो फिर आपको वहां से बॉन्ड एनर्जी यूज करनी होगी। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है फॉर द एनर्जी चेंज। अच्छा, अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब ये 3 इंटू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्योंकि 3 मोल क्लोरीन के हैं। और फिर दिस इज लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी से AlCl3 सॉलिड बनेगा। तो नाउ इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी। तो वन स्टेप में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगी, एंड अकॉर्डिंग टू हेल्स लॉ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ले सकते हैं और उनकी बॉन्ड नंबर साइकिल आप खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।